کے لیے ایک ایسے موقع پر آپ جا رہی ہیں کہ جہاں پر آج کے ہی روز لاہور ہائی کورٹ میں بھی نیب نے آپ کی ضمانت کو منسوخی کے لیے رابطہ کیا ہوا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کی تحریک کو دیکھتے ہوئے؟ یہ کرونا ویو بھی آئی ہے اور آپ کی جو ضمانت کی منسوخی بھی ہے، یہ اسی طرح بڑھتے نظر آ رہی ہے کہ یہ حکومت خوفزدہ ہے؟ دیکھیں، جہاں تک میری نیب کی اس کا تعلق ہے، جو مجھے ہائی کورٹ لاہور میں انہوں نے اپلیکیشن دی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ مضحکہ خیز اپلیکیشن کوئی ہو سکتی تھی، کیونکہ نیب کا کام ہے کرپشن پکڑنا، اور جب اس میں وہ بری طرح ناکام ہو گیا، 2 دفعہ میں جیل کاٹ آئی، 2 دفعہ میاں صاحب جیل کاٹ آئے، 1 پیسے کی جب ان کو کرپشن نہیں ملی تو اب رونا شروع کر دیا. اب ہائی کورٹ میں جا کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی مریم نواز سیاسی بیانات دے رہی ہیں، اداروں کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں. تو آپ کو بیانات جانچنے کا اختیار کس نے دیا؟ آپ کا کام تو سپوزڈلی کرپشن پکڑنا تھا. اس میں اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ نے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ تبدیل کر لیں. لاسٹ ٹائم جب مجھے یاد ہے تو فوج کے اسپوکس پرسن تو جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، عدلیہ کے اپنے اسپوکس پرسن ہیں، نیب کو اسپوکس پرسن کس نے تعینات کیا ہے؟ اور یہ کون ہوتے ہیں اپنے لیے خود یہ ذمہ داریاں ڈھونڈنے والے کہ کون کیا بیان دے رہا ہے، کون کیا بیان نہیں دے رہا؟ اور اس طرح کی جو، اگر آپ کو اپنے دائرہ اختیار کا نہیں پتہ، اگر آپ نے اتنی مضحکہ خیز پٹیشن عدالت میں جمع کرائی ہے تو آپ کے خلاف تو خود مقدمہ درج ہونا چاہیے. اور پھر نیب نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، آپ سب گواہ ہیں، پوری قوم گواہ ہے کہ مجھے جب نیب نے بلایا میں گئی، اور 1 دفعہ مجھے بلایا وہاں پر اور میرے پر قاتلانہ حملہ کیا، میری گاڑی پر پتھراؤ کیا اور میری گاڑی پہ لیزر گن سے فائر ہوا. اس کی جو وہ آرمڈ گاڑی تھی اس کی سکرین پوری کریک ہو گئی، ابھی تک میرے پاس وہ اسی طرح کھڑی ہے گاڑی. تو پھر بھی میں نیب کے دروازے کے باہر جا کر، وہ پتھر اور گولیاں کھانے کے بعد بھی میں نیب کے دروازے کے باہر جا کر کھڑی ہوئی، اور میں 1 گھنٹہ ان کے دروازے کے باہر کھڑی رہی. ان ڈرپوکوں نے دروازہ نہیں کھولا، اور میں نے ان کو یہ کہا کہ اب آپ نے مجھے بلایا ہے میری زمینوں کے بارے میں سوال جواب کرنے کے بارے میں، تو میں جواب لے کر آئی ہوں، میرا جواب سنیں. اور 1 گھنٹہ دروازہ نہیں کھلا. پھر اپنے جو میسنجرز ہیں وہ بھیجنے شروع کر دیے اور کہا کہ مریم بی بی کو کہیں کہ پلیز چلی جائیں، آج کی پیشی کینسل ہو گئی. میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گی، میں یہیں کھڑی ہوں، اب مجھ سے جواب لو. تو پھر انہوں نے لکھ کے میڈیا کو دیا، میڈیا کو پریس ریلیز ایشو کی کہ آج کی پیشی جو ہے وہ کینسل ہے اور ہم دوبارہ بلائیں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں 1 سال ہو گیا نا مجھے دوبارہ بلایا ہے. میں لاہور میں ہوں، جب بلاتے ہیں میں جاتی ہوں. حالانکہ یہ جتنا بھی یہ انتقام کا ادارہ ہے جو بھی ہے، پھر بھی جب یہ بلاتے ہیں میں ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے جاتی ہوں. تو انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ لاہور ہائی کورٹ میں بولا کہ مریم کوآپریشن نہیں کر رہی تحقیقات میں. کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ نے 3 مہینے مجھے تحقیقات کے پری ٹیکسٹ پہ، تحقیقات کے بہانے آپ نے مجھے نیب میں رکھا، اور آپ نے تحقیقات کیا کی مجھ سے؟ روز آ کے آپ مجھ سے یہ پوچھتے تھے آپ کون سی کتابیں پڑھ رہی ہیں، آپ کے گھر میں جو دعوتیں ہوتی ہیں اس میں مینیو کون بناتا ہے، پارٹی کے فیصلے کون کرتا ہے. تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس وقت میرے کامیاب جلسے ہو رہے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، انہوں نے میرے والد کے سامنے مجھے گرفتار کر لیا، اور آج تک نہ وہ ریفرنس بنا سکے. آپ یہ جانتے ہیں کہ چودھری شوگر مل جس نے مجھے ابھی وہ بلا رہے ہیں یا جس میں ابھی میرے خلاف وہ ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، اس کیس کا ذکر ہی نہیں ہے. اس کیس کا پول میں کھولوں، اس کیس کا ڈیٹیل یہ ہے کہ جس انویسٹیگیشن پہ انہوں نے مجھے اریسٹ کیا اس کے بہانے وہ کیس آج تک نہ یہ بنا سکے نہ ریفرنس رجسٹر کر سکے. میرے سامنے ان کو عدالت میں جج صاحب نے کئی بار پوچھا کہ تمہارا ریفرنس کہاں ہے بھائی؟ تو کبھی ادھر دیکھتے تھے کبھی ادھر دیکھتے تھے. ریفرنس بنتا ہوگا تو بنائیں گے نا. وہ تو اچانک ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں مریم نواز کو گرفتار کر لو، لانگ مارچ ہو رہا ہے مریم نواز کو گرفتار کر لو، حکومت کے خلاف ویو جو ہے وہ چل پڑی ہے، ضمنی انتخابات جیت رہے ہیں، مریم نواز کو گرفتار کر لو. تو یہ بے وقوف تو نہیں بنائے نا لوگوں کو. آپ کو پتہ ہے، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اور آپ
अपनी डूबती हुई कश्ती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि पीछे दिनों जावेद लतीफ़ ने एक बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे जब हमला हुआ था वो शहीद हो गई, तो पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। अगर खुदा ना खास्ता मरियम नवाज़ को कुछ होता है तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। आप इसको किस तरह देखती हैं? यानी सही कहा उन्होंने या गलत कहा? पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन किसी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करना, वो जावेद लतीफ़ साहब एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है और शेखुपुरा की आवाम उनको बार बार इलेक्ट करके नेशनल असेंबली में भेजती है, उन पे एतमाद का इजहार करती है। उनकी हुब्बुल वतनी में किसी किस्म का मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये जान रखें कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून को बार बार इंतकाम का निशाना बनाया तो आप खुद उसकी जद में आएंगे। मुस्लिम लीग नून खामोश नहीं रहेगी। अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा कि आप कल पीडीएम का सरबराही इजलास है, उसमें नून लीग क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी? आप नहीं समझती अब इस्तीफों का वक्त आ चुका है? और दूसरा, आज चीनी फिर 100 रुपये से तजावज़ कर गई है, इस पे क्या? देखें, बिल्कुल चीनी बल्कि 105 रुपये से तजावज़ कर गई है और मैं तो बोलूँगी, मैं महंगाई के पिछे आवाम के लिए भी बोलूँगी, मैं जो लाकानूनियत है मैं उसके ख़िलाफ़ भी बोलूँगी, मैं इनकी अकरबा परवरी के ख़िलाफ़ भी बोलूँगी, मैं इनकी ATMs के ख़िलाफ़ भी बोलूँगी। लाहौर को और पूरे पाकिस्तान को जो इन्होंने कूड़े का ढेर बना दिया है, जगह जगह पहाड़ बन गए हैं कूड़े के ढेर के, तो मैं इनकी आटा चोरी के ख़िलाफ़ भी बोलूँगी, इनकी चीनी चोरी के ख़िलाफ़ भी बोलूँगी, इनकी गैस चोरी के ख़िलाफ़ भी बोलूँगी, इनकी बिजली चोरी के ख़िलाफ़ भी बोलूँगी। और अगर इसको आप सियासी स्टेटमेंट्स कहते हैं तो हाँ, मैं सियासत करूँगी। नैब को यही तकलीफ़ है ना कि मैं आटा चोर को आटा चोर क्यों कह रही हूँ, मैं चीनी चोर को चीनी चोर क्यों कह रही हूँ, और मैं ये क्यों कह रही हूँ कि सियासत में मदाखलत बंद की जाए। ये सियासी स्टेटमेंट्स तो नहीं है, ये तो बिल्कुल मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, आइन और कानून मुझे हक देता है कि मैं, सियासतदान सियासत नहीं करेगा तो और क्या करेगा, अवाम की नुमाइंदगी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। अब इससे आपको डर लगता है तो मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, और एक और बात, नहीं इस्तीफों वाली बात अभी मैं करती हूँ, लेकिन एक और बात, अगर आप ये समझते हैं कि आप मरियम नवाज शरीफ को जेल की जमानत कैंसिल होने की धमकियों से डरा लेंगे तो सॉरी, ये इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं होगा, क्योंकि मरियम नवाज इमरान खान की तरह नहीं है कि बाहर जब पुलिस ने घेरा डाला तो दीवार फलांद के भाग गए। मरियम नवाज अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा बेगुनाह जेल काट के आई है, तीसरी दफ़ा भी काट लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर ये कुर्बानी मुझे देनी पड़ती है तो मैं ज़रूर दूंगी। ये धमकियाँ, गीदड़ भभकियाँ जिसको कहते हैं, ये किसी और को देना, तुम लोगों के दिमाग में खौफ होगा, मरियम नवाज के दिमाग में खौफ नहीं है। और एक आखिरी बात, इंतकाम में अब तुम इंतकाम में भी नाकाम हो गए हो तो अब अदलिया के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हो। अब आप अदलिया को इंतकाम में घसीटने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं अदलिया से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि नैब के इस झूठ का, इस लग़्व एप्लीकेशन का, इस बेहुदा एप्लीकेशन का नोटिस लें और उनके खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि मेरे लॉयर्स ये कहते हैं कि इस किस्म की एप्लीकेशन के खिलाफ खुद एक्शन होना चाहिए। और अगर नैब को इदारों का इतना ख्याल है तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में, मुख्तलिफ फैसलों में, अपने मुख्तलिफ रिमार्क्स में, हाई कोर्ट ने अपने मुख्तलिफ फैसलों में, मुख्तलिफ रिमार्क्स में नैब की जो कलई खोली है और नैब को जो एक्सपोज करके रख दिया है और ये कहा है कि नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इदारा है, तो नैब को चाहिए कि उन इदारों की उन स्टेटमेंट्स को, रिमार्क्स को, फैसलों को देखते हुए नैब को ताला लगाए और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करे। नैब का काम नहीं है, उस पे कैमरे वगैरह भी लगे, कंट्रोवर्सी। मुझे देखें, सेनेट से बड़ा जो 7 वोट्स रिजेक्ट हुए, उससे बड़ा स्कैंडल कैमरा है, कैमरा लगाना है, क्योंकि आइन के अंदर जो है वो खुफिया वोट का जिक्र है, खुफिया कैमरास का जिक्र नहीं है। और वो किस तरह वहाँ पर लगाए गए चुप करके रातों रात, और किसने लगाए, किसकी इजाज़त से लगे, किसकी सुपरविजन में लगे, और किसको ये यकीन था कि मेरे लोग भाग जाएंगे तो मुझे कैमरास लगाने की ज़रूरत पड़ गई है।
नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से तो आपने डरा धमका के कंटेनर्स में बंद करा के अपने ही अरकान को आपने ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे एतमाद का वोट ले लिया। सेनेट में आप ये भी नहीं कर सकते थे तो आपने खुफिया कैमरास लगा दिए। ये हुकूमत सिर्फ खुफिया चीज़ों पे चल रही है, वो भी अब एक्सपोज होकर कौम के सामने आ गई है। जहाँ तक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात है तो मुझे उम्मीद है कि जब ये इतना ग्लेयरिंग है, उनके नाम के ऊपर मोहरें लगी थी, 7 मोहरें जिनको इन्होंने 7 वोट्स जो इन्होंने कहा कि वो वैलिड नहीं है। अब अगर उम्मीदवार के खाने के अंदर मोहर लगती है, स्टैंप लगती है, चाहे वो उम्मीदवार के नाक पे लगे, माथे पे लगे, चेहरे पे लगे, है तो वो उम्मीदवार के नाम पर लगी है ना। जब आपकी वोटिंग इंटेंशन जो है या वोटर्स इंटेंशन क्लियर है, उसी खाने में है, तो आपको क्या तकलीफ है? ये तो जानबूझ के मैं ना मानू वाली बात हुई ना। तो मुझे ये उम्मीद है कि जब इंशाल्लाह ताला ये कोर्ट में इसको लेके जाएंगे तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाएंगे। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि नैब का ये काम नहीं है कि कौन किसके खिलाफ बयान दे रहा है। नैब का काम है वो डिटरमिन करे कि कौन करप्शन कर रहा है। क्या आप समझती हैं कि कोई दबाव है सुप्रीम हाई कोर्ट को? तो ऐसी एप्लीकेशन को इंटरटेन ही नहीं करना चाहिए था। कौन है इसके पीछे? और दूसरा ये बताएगा कि आपको सुना है कुछ थ्रेट्स है, कौन सी वो कुव्वतें हैं जो आपको थ्रेट्स कर रही है, क्यों कर रही है? इनके पीछे मेरा ख्याल है कि ये सब मिलके जो पहले कहते हैं कि हम मरियम को स्मैश कर देंगे, तो वो ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। ना मरियम डरती है, ना मरियम के वालिद डरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त और ज़िल्लत भी उसके हाथ में है। तो जो मरियम को स्मैश करने के ख्वाब देख रहे हैं, शायद उन्होंने अपनी डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए वो ये हाथ पांव मारे हैं और उन्होंने हाई कोर्ट के कंधे पर रख कर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और इंतकाम की और मरियम नवाज़ को कर्टेल करने की, मरियम नवाज़ को काबू करने की एक नई तरकीब सोची है। तो मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो है वो इस दरख्वास्त को ना सिर्फ ये कि एंटरटेन नहीं करेगी, बल्कि इंशाल्लाह ताला वो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस किस्म की जो मुज़िका खेज़ दरख्वास्तें हैं उनका रास्ता बंद करेगी। और जहाँ तक नैब का ताल्लुक है तो आप ये जान लें कि नैब करप्शन पकड़ने का इदारा अब नहीं रहा। नैब सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के जो मुखालिफिन हैं उनको हरास करने का इदारा है। उनको जब आप इमरान खान मुकाबला नहीं कर सकता मैदान में, डस्का से भाग जाता है, थैले उठाने के बावजूद, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठाने के बावजूद, जब मुस्लिम लीग नून और शेर जीत जाता है तो वो मैदान से भाग जाते हैं। तो भाई मैदान में आओ ना, मरियम नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का मैदान में मुकाबला करो। ये कभी हाई कोर्ट, कभी नैब, इन चीज़ों के पीछे क्या छुपते हो? आओ ज़रा मुकाबला करो, पता चले तुम्हें तो अवाम कितनी नफरत करती है तुमसे। ये बताएं कि कल अगर नैब करप्शन पकड़ती तो आटा चोरी पकड़ती, चीनी चोरी पकड़ती, इमरान खान की ATMs को पकड़ती। तो वो तो आप जाहिर है हुक्म के ग़ुलाम हैं। उनको ये हुक्म दिया गया है कि मेरे ओपोनेंट्स को तुमने लाइन में रखना है। जो ओपोनेंट्स नैब के काबू आते हैं वो नैब काबू करे, जो ओपोनेंट्स एजेंसीज़ के काबू आते हैं उनको एजेंसीज़ काबू करें, उनको फ़ोन करें, उनको कंटेनर्स में बंद करें। और वो एजेंसीज़ सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो इनके अपने अरकान के लिए भी हैं। सुना तो ये था ना पहले कि अपोजिशन के अरकान उठाए जाते थे, उनको धमकाया जाता था। इस दफ़ा तो हुकूमत के अपने सेनेटर्स और MNAs खुद उठाए गए। ये बताइएगा कि मरियम साहबा के हुकूमत ने कल कहा है कि आप लोग से बैठना चाह रहे हैं, वो आपके बड़ों के साथ बैठना चाह रहे हैं, मुल्क की मेरे बड़े कौन हैं? बड़े नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ बैठना चाह रहे हैं। तो आप लोग क्या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ उनके साथ बैठना चाहेंगे कि मुल्क की सूरत हाल के ऊपर? दूसरा ये बताएं कि PDM पहले एक करके मैं ये बता दूं कि इन्होंने बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की है। ये जो सुप्रीम कोर्ट पे जो कंधे पे उनके रख के बंदूक चलाने की कोशिश की थी, ये शो ऑफ हैंड्स वाले, उसमें PMLN ने साफ इनकार किया, PDM ने साफ इनकार किया। मैं समझती हूँ ये जाली हुकूमत है। मैं समझती हूँ कि आवाम के वोटों पर डाका डाल कर आई है। इसकी कोई ना पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, ना इसकी कोई आईनी हैसियत है, ना कानूनी हैसियत है। इमरान खान एक कठपुतली है और मुसल्लत किया गया है 22 करोड़ अवाम पे, जिसका नतीजा पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। वो 22 करोड़ अवाम का न सिर्फ ये कि अब कठपुतली है, वो मुजरिम भी है। इसलिए मुस्लिम लीग नून, PDM इनमें से किसी का न साथ देगी
ना इनके साथ मिल के बैठेगी, ना कोई बात करेगी। ये अपनी बात उठाएं और भागें यहाँ से। ये बता दें कि पीडीएम के पास आखिरी ऑप्शन लॉन्ग मार्च है या दीगर भी कोई ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है? कोरोना भी चल रहा लॉन्ग नहीं, कोरोना तो तब आता है जब हुकूमत मुश्किल में आ जाती है, वरना कोरोना नहीं होता। और कोरोना जो है वो ना वो ऑपोजिशन के जलसों में आता है, हुकूमती जलसों में नहीं आता, ऑपोजिशन की गैदरिंग्स में आता है, हुकूमती गैदरिंग्स में नहीं आता। तो ये जो कोरोना से बड़ा ख़तरा है इमरान खान, कोरोना तो आया है, चला जाएगा इंशाल्लाह। उसकी वैक्सीनेशन भी आ गई है। इमरान खान की वैक्सीनेशन यही है कि अवाम उसको उठा के बाहर फेंके। तो लॉन्ग मार्च भी ऑप्शन है, इस्तीफ़ों का भी ऑप्शन है। आज हमारी अपनी जो प्रेपरेटरी मीटिंग है पीडीएम का कल इजलास है, उससे पहले हमारी आज मीटिंग है जिसको नवाज शरीफ साहब लंदन से चेयर कर रहे हैं। तो वो हम आज इस्लामाबाद में, मैं वही अटेंड करने जा रही हूँ। कल पीडीएम का इजलास है और उसके बाद हमारी लॉन्ग मार्च की मीटिंग्स हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत बिल्कुल नहीं चल सकती, इसको घर जाना पड़ेगा। बता दें कि हुकूमत सोच रही है कि अब मरियम नवाज का क्या इलाज किया जाए, उनको बाहर भेजने की भी ऑप्शन जो है वो उस पर गौर कर रही है। क्या कहेंगे, आप जाएंगे बाहर? जब तक इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत घर नहीं चली जाती, इमरान खान अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच जाता, इमरान खान को मैं इंशाअल्लाह ताला हम घर नहीं भेज देते। ये मेरे ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं और मेरे आगे अगर टिकट लेकर आएं और ईसीएल में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें, मैं इनको कहूँगी उठाओ और चलते बनो। अवाम के जो हकूक़ की मैं जंग लड़ रही हूँ, उनको जो महंगाई का अजाब और लाकानूनियत का अजाब और नालायकी और ना अहली का अजाब जो उन पे आया है, जब तक मैं उसको इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा लेते, इस हुकूमत को घर नहीं भेज दे, आपका ख्वाब मरियम नवाज को बाहर भेजने का भी पूरा नहीं होगा मीडिया और अवाम के सामने क्यों नहीं ले आती है जो धमकी वाली कॉल्स आपको? एक सेकंड, जो धमकी वाली कॉल्स आपको बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मियां मियाँ साहब की जो वीडियो है जरा चलाएं, मीडिया पे चलाएं ना, इतनी हिम्मत है आप में? पीडीएम बताएं। नहीं, एक सेकंड, अगर आप मियाँ साहब ने तो इतनी बहादुरी का मुजाहरा किया, नाम लिए, अब आप भी थोड़ी सी हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करें और चलाएं उसको लाइव मीडिया के ऊपर। आप समझते हैं वही नाम है जो मियाँ साहब ने लिए? मैं बिल्कुल यही समझती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन आप भी चलाएं उसको जरा मीडिया के ऊपर। मरियम, जो आपको ये धमकियां आ रही हैं, आपको डायरेक्ट आ रही हैं, 7 लोगों को सामने लेकर आएगी कि जिनके वोट के हवाले से कहा जा रहा है कि शहर में वोट नहीं दिए, पीडीएम ये करेगी। मैं समझती हूँ कि कोई ऐसा नहीं है जिसने यूसुफ रजा गिलानी को वोट नहीं दिया। देखिए, अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते तो गफूर हैदरी साहब भी जीत जाते। आप धमकियों के हवाले से आपने भी बात भी की कि स्मैश करने का, क्या थोड़ा सा आवाम भी जानना चाह रही है, क्या आपको डायरेक्टली ये धमकियां दी जा रही हैं और यहाँ आपको पार्टी के रहनुमाओं के जरिए खामोश करने के लिए कहा जा रहा है कि मरियम नवाज आगे कहीं ना बात करें? थोड़ा सा आवाम भी जानना चाह रही है कि उसको कुछ अगर लॉन्ग मार्च से पहले आपको गिरफ्तार कर लेते हैं, मैं ये समझती हूँ कि जब तक आप नवाज शरीफ साहब की वो वीडियो नहीं चलाएंगे मीडिया के ऊपर, मैं इस बारे में आपको कोई जवाब नहीं दूंगी। ना आपका हक है इस बारे में मुझसे सवाल करने का, जब तक आप मियाँ साहब की वो वीडियो कौम को नहीं दिखाएंगे। आप पूछ रहे हैं कि कौम ये सवाल पूछ रही है, तो कौम किस बारे में सवाल पूछ रही है? आपने तो दिखाया ही नहीं उसको। नहीं, आवाम जान सोशल मीडिया के जरिए हर एक को पता है। आप पहले मियाँ साहब की वो वीडियो सारे चैनल्स पे चलाएं ताकि मुझे ये पता हो कि पाकिस्तान का प्रेस आज़ाद है, पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद है, पाकिस्तान की मीडिया पर कोई दबाव नहीं है और किसी इदारे का कोई दबाव नहीं है। हक और सच बात पाकिस्तान का मीडिया चलाने के लिए आज़ाद है, पहले चलाएं और फिर मुझसे पहले आपकी गिरफ्तारी हो जाती है, फिर क्या ऑप्शन होगा? तो गिरफ्तारी तो पहले भी हुई थी, 2 दफा आई थी, उल्टी पड़ गई। इंशाल्लाह इस दफा और ज्यादा उल्टी पड़ जाएगी। लीड करेंगे लॉन्ग मार्च होगा? नहीं, हमजा शहबाज भी हैं माशाल्लाह, मियाँ साहब भी लंदन में बैठे हैं। तो ये जो प्रीएम्प्ट कर रहे थे ना कि मियाँ साहब को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर रहे थे और उनको लाने की कोशिश कर रहे थे, वो इसीलिए था, उनको पता था कि मियाँ साहब अब बाहर चले गए हैं, तो हम उनको अब क्या करें, वो बोलेंगे बाहर से। तो मुझे अगर गिरफ्तार करेंगे तो मियाँ साहब खुद लीड करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।